Good morning, everyone. We are continuing our chapter of Vijayanagar. We are trying to understand this magnificent city of Vijayanagar, which is part of the Vijayanagar Empire, a great empire of southern India on the banks of Tungabhadra. Now, during that time, the architecture of this place is very significant. Okay, historians, archaeologists, they have discovered unique architecture in this area and considered a very beautiful city. Now we will see how they used to protect this city. It is important in those days that the cities, fortification of the city was very important because there were constant invasions, there was always a danger of attack. So security and safety of the people and the rulers, that was very important because there were constant invasions and so the forts had to be constructed to keep people and the rulers safe. Here also we see the fortification and the roads. Before we examine the different parts of the city, this city has got different parts. There is urban core, there is a royal center, there is sacred center. If you see the sketch on page number 176, there you will see the royal center and urban core and sacred center. All three have been shown in that in great detail. Okay, but what is important is that there was a lot of fortification. Forts were built and these areas were enclosed. That is what we will see today. Abdul Razak, as we know, he was an ambassador and sent by the rulers of Persia. He was the ambassador. वो पर्शिया से आए थे यहाँ पर और उन्होंने विजयनगर के फोर्टिफिकेशन के बारे में लिखा है एंड ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द फोर्टिफिकेशंस. यहाँ पे जो फोर्टिफिकेशन था, जो इसको इनक्लोज किया गया था, इस एरिया को जो प्रोटेक्ट करने का जो तरीका था, उससे काफ़ी इम्प्रेस थे एंड मेंशन्ड सेवरल लाइंस ऑफ फोर्ट्स. नाउ इमेजिन, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक फोर्ट बनाते हैं, मे बी 2 फोर्ट्स, उसे जिससे कि कोई अंदर नहीं आ सके. बट हियर वी सी 7 फोर्ट्स. जो लोग रह रहे हैं, जो अर्बन कोर है, केवल उसे ही प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्ट नहीं बनाया गया. We can understand that the royal center has to be fortified. We can understand that the secret center has to be fortified. But यहाँ पर forest, the agricultural land, fields, उन्हें भी fortify किया गया था. Why? We will know the reasons. Okay. So he mentions 7 lines of fortifications. These encircle not only the city. केवल ये सिटी को घेर कर नहीं बनाया गया था, केवल सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बनाया गया था ये फोर्टिफिकेशन. सिटी फोर्टिफाइड थी, लेकिन सिटी के साथ साथ फिर उसके बाहर का जो एग्रीकल्चरल लैंड था, जो गार्डन्स थे, वो भी फोर्टिफाइड थे. ओके. एंड द आउटर मोस्ट वॉल, जो सबसे लास्ट में एकदम आउटर है वॉल है, दैट लिंक दी हिल्स, बिकॉज ये हिल्स के बीच में बसा हुआ शहर था एंड हिल्स के बीच में से जो पैसेजेस थे, उनको हिल्स को कनेक्ट करके वो पैसेजेस को भी फोर्टिफाई किया हुआ था, सो दैट नोबडी कैन एंटर दिस एंटायर एरिया. द रेस्ट इज कवर्ड बाय द हिल्स. बट जो हिल्स के बीच का जो स्पेस होगा, जहाँ से कोई आ सकता था या जा सकता था, इवन दैट वाज फोर्टिफाइड. सो द हिल्स, दे वर ऑल्सो linked by these walls. Okay. Now the outermost wall, जो सबसे बाहरी है, जो हम कह रहे हैं, is linked the hills surrounding the city. तो वो जो hills हैं जो कि सिटी को सराउंड कर रहे थे, उनको ये outermost wall लिंक करती थी. लेकिन इसे बनाने के लिए कोई भी मोटार या कोई भी सीमेंटिंग एजेंट इस्तेमाल नहीं किया गया है. They were intelligent people and this would have been very expensive and time consuming. इसलिए उन्होंने इस वॉल को बनाने के लिए, इस फोर्टिफिकेशंस को करने के लिए, जो कि बहुत एक्सटेंसिव है, इन फोर्टिफिकेशंस को करने के लिए what they did was they placed stones, एक स्टोन को दूसरे स्टोन्स में लिटरली फंसा कर उन्होंने रखा and they were wedge से शेप. वो इस तरह से शेप थे कि one stone
would obviously get entangled in the other stone and that would not come out. तो एक पत्थर को दूसरे पत्थर में फंसा कर रखा गया, उसको शेप उस तरह से किया गया जिससे वो आसानी से निकल ना सके, जिसे वेज शेप कहा जाता है, पॉइंटेड फ्रॉम वन एंड, ओके, जिससे कि वो दूसरे में अच्छी तरह से फिट हो सके. सो नो मोटार और सीमेंटिंग एजेंट. तो पहले तो हम देख रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट जो एरिया है, जो हिल्स है, उनको भी फोर्टिफाई किया गया है और वहाँ पर कोई भी सीमेंटिंग एजेंट या इन फोर्ट्स को बनाने के लिए, इन वॉल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई भी मोटार या सीमेंटिंग एजेंट इस्तेमाल नहीं किया गया है. स्टोन्स को शेप करके, उनको पॉइंट करके एक दूसरे में उन्हें प्लेस कर दिया गया था, which held them in place. And the inner portion of the wall, जो वॉल अंदर की तरफ था, उस पर जो लगाया गया था, that was earth packed with rubble, जो मिट्टी से उसको कवर किया गया था with rubble, काफी सारी चीजें उसमें कंकड़ पत्थर मिलाकर उससे उसको इनर वॉल को obviously कवर किया गया था. What was the most significant about this fortification? यही यूनिक बात है विजयनगर एम्पायर की, इस विजयनगर सिटी की, कि इस विजयनगर सिटी में इवन द एग्रीकल्चरल लैंड वाज फोर्टिफाइड. तो एग्रीकल्चर लैंड जो हम बार बार कह रहे हैं कि सबसे सिग्निफिकेंट चीज़ जो हमें देखने को मिल रही है विजयनगर सिटी में, वो ये है कि इसका जो एग्रीकल्चरल लैंड जहाँ पे खेती हो रही है उसको भी फोर्ट से इनक्लोज वॉल बनाई गई है. उसके बाद भी बिटवीन द फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड वॉल्स, ओके, उसके बीच में ये एग्रीकल्चर लैंड है, गार्डन्स हैं एंड हाउसेस हैं. तो कई सारी वॉल्स हैं, ओके. एंड डोमिनिगो पेस जो कि पोर्चुगीज थे, जो कि ऑब्वियसली विजयनगर एम्पायर में आकर उन्होंने वेपन सप्लाई किए थे कृष्णदेवराय को. तो पेस, डोमिनिगो पेस लिखते हैं, फ्रॉम दिस फर्स्ट सर्किट, जब आप सिटी में पहले जो एंट्रेंस से आप एंटर करते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट सर्किट अंटिल यू एंटर द सिटी. तो जब इस विजयनगर इस एरिया में आप एंटर करने के बाद और सिटी में एंटर करने के बीच में बहुत लार्ज एरिया है, इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, देयर इज अ ग्रेट डिस्टेंस. और इस बीच में क्या है, विजयनगर सिटी और इस शुरुआत के फर्स्ट एंट्रेंस के बीच में क्या है, there are agricultural fields in which they sow rice and have many gardens and much water. तो यहाँ पे gardens हैं, पानी का सोर्स है, fields हैं और उन fields में राइस लगा हुआ है. और इन fields के लिए पानी कहाँ से आता है, in which water comes from two lakes and obviously these lakes, the agricultural tract between the sacred center and the urban core, जो सेक्रेट सेंटर और अर्बन कोर के बीच में भी एग्रीकल्चरल लैंड है. इफ़ यू सी दी स्केच आर्किटेक्चरल ड्राइंग है 176 पेज पे, यू हैव टू रिफर इट बिकॉज इट्स नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड. आपको यहाँ देखकर ही समझ में आएगा कि इफ़ यू सी अर्बन कोर एंड रॉयल सेंटर एक तरफ है एंड सेक्रेट सेंटर उस तरफ है, बीच में देयर इज लॉट ऑफ एरिया, ओके. एंड इस एरिया में भी एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट थे, ओके, वहाँ पर भी एग्रीकल्चर होती थी. और इस एग्रीकल्चर में रीजन में कैनाल सिस्टम के जरिए पानी सप्लाई होता था, ओके. तो जो एग्रीकल्चर लैंड है बिटवीन द सेक्रेट सेंटर एंड द अर्बन कोर, ओके, एंड इन दोनों के बीच का जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें कैनाल सिस्टम से पानी सप्लाई किया जाता था. और ये कैनाल कहाँ से आती थी, दिस कैनाल वाज ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम तुंगभद्र. तो उस रिवर का पानी, वहाँ से ये पानी ड्रॉ करती थी तुंगभद्र से ये कैनाल, एंड इस पानी को पहुँचाती थी इस एग्रीकल्चरल लैंड में जो कि सेक्रेट सेंटर और अर्बन कोर के बीच में था, ओके. Why do you think that agricultural tracts were incorporated within the fortified area? This is an important question. You must understand this properly. कि ये क्यों ज़रूरी था कि इस एग्रीकल्चरल लैंड को भी प्रोटेक्ट करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि यू आर प्रोटेक्टिंग पीपल, यू आर प्रोटेक्टिंग दी सिटी, कोई इन्वेड नहीं करे, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं करे, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड को प्रोटेक्ट करने की क्या ज़रूरत थी. नाउ इन दोज टाइम्स, इन दोज मिनिमल टाइम्स, अगर किसी को आपको अटैक करना है, ऑब्वियसली आप ट्रूप्स ले जाएंगे, वहाँ अटैक करेंगे,
बट ही हैज इंक्लोज हिमसेल्फ, पूरा सिटी सभी लोग एक फोर्ट के अंदर जाके शरण ले लेंगे। ओके, तो नॉर्मली क्या करते थे, द आर्मी वुड ले डाउन सीज, उसको घेर कर वहाँ पर वो ऑब्वियसली दे यूज्ड टू वेट फॉर मेनी डेज एंड इसके लिए फोर्ट्स के अंदर पहले से तैयारी की जाती थी। वहाँ पे लार्ज ग्रेनरीज वर देयर इन ऑलमोस्ट ऑल दी फोर्ट्स, बहुत बड़े बड़े ग्रेनरीज होते हैं जहाँ पे अनाज को स्टॉक किया जाता है, सो दैट कई महीनों तक वहाँ पर लोगों के लिए सारी सप्लाईज बनी रहे। ओके, एंड बाहर तक जो अटैक करने आए हैं वो ऑब्वियसली इंतज़ार करते थे कि कब इनका अनाज और वो सब खत्म हो, और फिर फाइनली दे विल हैव टू ओपन दी डोर्स, और फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा इन्हें अटैक करना। तो यही तरीका हुआ करता था। इससे बचने के लिए विजयनगर एम्परर्स ने, रूलर्स ने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने ये अनाज को स्टोर करने के बजाय दे मेड श्योर कि हमारा एग्रीकल्चरल लैंड ही सेफ क्यों ना हो जाए, क्यों ना एग्रीकल्चरल लैंड को ही हम प्रोटेक्ट कर लें जहाँ पर हम हमेशा खेती करते रहें। ग्रेन्स तो एकदम खत्म हो जाएंगे, 3, 4, 5, 6 महीने तक लास्ट कर सकेगा ये जो ग्रेनरी में जो हम अनाज रखेंगे। बट अगर हम एग्रीकल्चरल लैंड को ही अगर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, उसी को फोर्टिफाई कर लेते हैं, उसी को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, तो हम कंटिन्यूसली अपना एग्रीकल्चर कर पाएंगे इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसके बाहर कोई हम पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो दिस वाज अ यूनिक वे वेयर इंस्टेड ऑफ कीपिंग ग्रेन्स इन दी ग्रेनरी, फोर्ट के अंदर ग्रेनरी में ग्रेन का स्टॉक रखने की बजाय दे थॉट कि ये बेटर है कि हम अपने एग्रीकल्चरल लैंड को ही क्यों फोर्टिफाई करें। ओके, so this agricultural pact, often the objective of medieval sieges was to starve the defenders into submission। कोशिश करती थी आर्मी के जो फोर्ट के अंदर लोग हैं वो भूखे मरने लगे, और तब जाकर उनको अटैक किया जाए और टेक ओवर किया जाए। These sieges could last for several months and sometimes even for years। कई सालों तक ये सिलसिला चल सकता था। और ऐसे में फोर्ट्स के अंदर आप कितना अनाज स्टॉक कर सकते हैं अगर ये सालों तक की बात होगी तो। नॉर्मली रूलर्स ट्राई टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सच सिचुएशंस बाय बिल्डिंग लार्ज ग्रेनरीज, और इससे बचने के लिए फोर्ट्स के अंदर लार्ज ग्रेनरीज बनाई जाती थी। बट आई टोल्ड यू कि ग्रेन्स को स्टॉक कुछ महीने में भी 1 साल 1.5 साल के लिए किया जा सकता है, बट अगर सीज कई सालों तक चल रहा है देन इट इज वेरी इम्पॉसिबल। ओके, द रूलर्स ऑफ विजयनगर अडॉप्टेड अ मोर एक्सपेंसिव, जो महंगा जो तरीका था ग्रेनरी बनाना, वो उतना महंगा शायद नहीं था जितना कि पूरे एग्रीकल्चरल लैंड को फोर्टिफाई करना। ओके, वो सराउंडेड बाय इट्स ओन ऑब्वियसली द इलैबोरेट स्ट्रैटेजी ऑफ प्रोटेक्टिंग द एग्रीकल्चरल बेल्ट इटसेल्फ। उन्होंने समझा कि ये बेटर है कि हम ग्रेनरीज बनाएं फोर्ट्स के अंदर और उनमें अनाज भर के रखें। इससे बेटर होगा कि हम अपने एग्रीकल्चरल लैंड को ही क्यों प्रोटेक्ट करें और उसके बाहर ही फोर्ट बनाया जाए, जिससे कि हमारा एग्रीकल्चरल लैंड भी सेफ हो जाए। A second line of fortification went around the inner core of the urban complex। फिर अंदर और छोटे छोटे ये डिटेल्स हैं कि अर्बन कोर है, अर्बन कोर में ही यू विल सी रॉयल सेंटर ऑल्सो। रॉयल सेंटर के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, जहाँ पर ऑब्वियसली राया रहते थे, तो रॉयल सेंटर अर्बन कोर का पार्ट था रॉयल सेंटर। ओके, और रॉयल सेंटर में ऑब्वियसली रॉयल पीपल राया यूज्ड टू स्टे एंड अर्बन एरियाज में बाकी लोग रहते थे। तो रॉयल सेंटर का अपना एक फोर्टिफिकेशन है। रॉयल सेंटर के अंदर जितनी बिल्डिंग्स है उनका अपना पर्सनल फोर्टिफिकेशन है। सो इट वाज अ वेल प्रोटेक्टेड सिटी। ओके, एंड सेफ्टी का इसमें बहुत ध्यान रखा गया था। एंड the second line of fortification went around the inner core of the urban complex, and a third line surrounded the royal center, within which each set of major building was surrounded by its own high wall। So what basically you have to understand is, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी को अच्छी तरह से वेल प्रोटेक्ट किया गया है। बाहर हिल्स को लिंक कर दिया गया, वो एक घेरा बना दिया गया, उसके अंदर एग्रीकल्चर लैंड फॉरेस्ट वो भी प्रोटेक्टेड है, देन अर्बन कोर वो भी प्रोटेक्टेड है, उसके अंदर रॉयल सेंटर है, अगेन देयर इज फोर्टिफिकेशन फॉर दैट,
हम आगे देखेंगे कि सेक्रेट सेंटर के अपने फोर्टिफिकेशन है, रॉयल सेंटर के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं उनको वॉल्स से ऑब्वियसली कवर किया गया है। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ सेफ्टी नेटवर्क जो कि यहाँ पर था। और ये जो फोर्ट्स थे, इन फोर्ट्स में जो एंट्री गेट्स बनाए गए थे वो भी बहुत यूनिक थे। यू कैन सी इन पेज नंबर 7 इन फिगर 7.6 ऑन पेज नंबर 178 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एक फिगर है और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वॉल्स के बीच में एज यू सी इन डिफरेंट ऑब्वियसली फोर्ट्स वॉल है, ऑब्वियसली उसमें गेट्स भी होंगे और ये गेट बनाया हुआ है। इस गेट में आर्क है, ओके, यू अंडरस्टैंड दिस आर्क्स उसमें है, बट आर्क के ऊपर देयर इज अ डोम। ओके, सो बेसिकली दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ये डोम बनाना ये उन्होंने टर्किश सुल्तान से उन्होंने सीखा था और इसको दोनों ही आर्किटेक्चर को कंबाइन करके इन गेटवे को बनाया गया है। और इन गेटवे में आर्क भी है और उन आर्क्स के ऊपर डोम है, विच इज़ ऑब्वियसली इसे इस स्टाइल को हम इंडो इस्लामिक स्टाइल कहेंगे। इंडियन प्लस ये जो टर्किश सुल्तान से जो इस्लामिक आर्किटेक्चर था उसका कॉम्बिनेशन है। तो ये टिपिकल फीचर्स ऑफ द आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस्ड बाय द टर्किश सुल्तान से डोम उनका फीचर था। और इस डोम को हमने विजयनगर किंग्स ने, रायाज ने इसे इन गेट्स के ऊपर बनवाया। तो ये एक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये जितने भी गेटवेज हैं इन फोर्ट्स में दे बीन मेड इन दिस स्टाइल ऑफ इंडो इस्लामिक तरीके से बनाए गए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव स्टडीड रोड्स विद इन द सिटी एंड दोज लीडिंग आउट ऑफ इट। और ये रोड्स का स्ट्रक्चर भी था, शहर के अंदर जाने के लिए, शहर से बाहर जाने के लिए रोड्स भी थे। ओके, अब हम अर्बन कोर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अर्बन कोर वेयर पीपल यूज्ड टू स्टे मूविंग अलोंग द रोड लीडिंग इनटू द अर्बन कोर। वो रोड के अगर साथ साथ चले जो कि अर्बन कोर की तरफ जाती है, देयर इज रिलेटिवली लिटिल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द हाउसेस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। हाउसेस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल का एविडेंस पाना भी मुश्किल है। इतने लंबे समय के दौर पर कोई भी ऑर्डिनरी हाउस विल नॉट सर्वाइव, बिकॉज ऑर्डिनरी हाउसेस ज़्यादातर वो नेचुरल चीज़ों से बने होते हैं। दे आर ऑब्वियसली मे बी द वुड इज यूज्ड, ग्रास इज यूज्ड, ओके, एंड दोज थिंग्स दे पेरिश, कुछ सालों में ही वो खत्म हो जाते हैं, तो उनका एविडेंस पाना भी मुश्किल है। बट यहाँ पर जैसे कि देयर आर नो एविडेंस, तो हमको कोई ऐसी चीज़ें भी नहीं मिली हैं जिससे पता रहे कि यहाँ पे लोग रहते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड फाइन चाइनीज पोर्सलिन, जो चीज़ें मिली हैं यू कैन सी इन फिगर 7.9 वहाँ पे चाइनीज पोर्सलिन के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं वहाँ पर। और दे हैव फाउंड चाइनीज पोर्सलिन इन सम एरियाज इंक्लूडिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ द अर्बन कोर। तो अर्बन कोर के नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर में ये चाइनीज पोर्सलिन मिला है। अब चाइनीज पोर्सलिन उस समय चाइना से बनकर ये आते थे, और अगर ये किसी के पास है तो किसी ऑर्डिनरी पर्सन के पास तो चाइनीज पोर्सलिन नहीं होगा, बिकॉज ये बहुत एक्सपेंसिव एंड बहुत रेयर चीज़ थी। तो अगर ये किसी के पास है दैट मीन्स दैट पर्सन मस्ट हैव बीन रिच। ओके, तभी वो चाइनीज पोर्सलिन अफोर्ड कर सकता था। ओके, तो अगर किसी घर के नीचे या तो एक्सकेवेशन में चाइनीज पोर्सलिन मिलता है उस दौर में, देन ऑब्वियसली ये मान लेना चाहिए कि वो एक रिच पर्सन होगा। तो मे बी दिस हैव बीन ऑक्युपाइड बाय रिच ट्रेडर्स, तो शायद ये जगह रिच ट्रेडर्स ने ऑक्युपाई की हुई थी। दिस वाज आल्सो द मुस्लिम रेसिडेंशियल क्वार्टर। तो यहाँ पे दो चीज़ के प्रमाण मिलते हैं। एक तो चाइनीज पोर्सलिन से ये पता चलता है कि यहाँ पे रिच ट्रेडर्स रहते थे, एंड प्लस यहाँ पर मुस्लिम्स भी रहते थे, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे टूम्स एंड मॉस्क भी मिले हैं। ओके, एंड पोर्चुगीज ट्रैवलर बारबोसा, एक और ट्रैवलर थे बारबोसा और पोर्चुगीज, उन्होंने डिस्क्राइब किया है हाउसेस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल विच हैव नॉट सर्वाइव्ड। जो अभी हमारे पास जिनके प्रमाण नहीं है, उन हाउसेस को बारबोसा जो कि पोर्चुगीज ट्रैवलर थे उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, और उनके डिस्क्रिप्शन से हम पता कर सकते हैं कि ये हाउसेस उस समय के ऑर्डिनरी लोगों के घर कैसे रहे होंगे। The other houses of the people are thatched
वो छप्पर डला रहता था उस पर, उसको थैचिंग कहते हैं। बट नंदीलेस वेल बिल्ट एंड अरेंज अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से बने हुए थे। इन लॉन्ग स्ट्रीट्स विद मेनी ओपन प्लेसेस, तो वो कंजेस्टेड नहीं थे और काफ़ी अच्छी तरह से बने हुए थे, जबकि वो भले ही थैच थे। एंड Field surveys indicate the entire area was dotted with numerous shrines. वहाँ पे अलग अलग shrines रहे होंगे, small temples pointing to different people of different sects, अलग अलग religion, अलग अलग culture को मानने वाले लोग यहाँ रहते थे, क्योंकि उनके अलग अलग temples और religious sites के प्रमाण मिले हैं। The surveys also indicate that wells, rainwater tanks, as well as temple tanks have served as a source of water to the ordinary town dwellers. तो ordinary town के लोगों को जो पानी का source जो था वो wells के जरिए था। ये रेन वाटर टैंक्स भी होते थे जो जहाँ से पानी उन्हें मिलता था, एंड wells भी obviously टेम्पल टैंक्स भी होते थे जो टेम्पल के पास टैंक्स बनाए जाते थे टेम्पल के वाटर नीड्स को पूरा करने के लिए। तो ये हम देखते हैं, दिस इज अबाउट द अर्बन कोर। अर्बन कोर में हमें रिच ट्रेडर्स के घर होते थे, वहाँ पर ऑब्वियसली मुस्लिम्स रहते थे, रेसिडेंशियल क्वार्टर भी था। एंड पोर्चुगीज जो बारबोसा ट्रैवलर है उन्होंने ऑर्डिनरी लोगों के घर का भी इसमें जिक्र किया है कि वो भी अच्छी तरह बने होते थे, जबकि वो थैच्ड हाउसेस थे। तो ये है अर्बन कोर के बारे में। एंड देन in the next class we will learn about the royal center. Now this was the area where obviously the Raya used to stay, and an important intriguing चीज़ है यहाँ पर, जैसे कि सिटाडेल है इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में मौजूदारों में, वैसे ही यहाँ पे महानवमी डिब्बा, ये नाम obviously आर्कियोलॉजिस्ट इसे बुलाते हैं इस नाम से, महानवमी डिब्बा। ये क्या चीज़ है इसके बारे में जानेंगे। ओके, एंड we learn about other buildings in the royal center. यहाँ पर बिल्डिंग्स और हैं, ज़्यादा हैं, फिर हम सीक्रेट सेंटर्स में देखेंगे, तो वहाँ पर obviously we'll be studying about the different temples that were there in the sacred centers. So we'll be covering this royal center in the next class. Okay, today we learned about the fortification, कि ये कितना well fortified सिटी थी। यहाँ पे 7 लाइन्स ऑफ फोर्टिफिकेशन था। आउटर हिल्स को भी आपस में लिंक किया गया था। ओके, एंड वी आर सीइंग दैट इवन द एग्रीकल्चरल लैंड इज फोर्टिफाइड, द अर्बन कोर इज फोर्टिफाइड, ओके, रॉयल सेंटर इज फोर्टिफाइड। सो वी आर सीइंग ग्रेट डिटेल ऑफ फोर्टिफिकेशन एंड वी लर्न द पर्पस कि इसको फोर्टिफाई क्यों करने की जरूरत थी एग्रीकल्चरल लैंड को भी, बिकॉज कि अगर कोई सीज करता है, अगर कोई आक्रमण करता है तो उससे बचने का ये बेस्ट तरीका था। एंड हाउ दीज वॉल्स वर मेड, एंड इन वॉल्स के बीच में ये इलाबरेट वेल डिज़ाइन गेटवेज थे जो कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर तरीके से बनाए गए थे। ओके, सो दैट इज इन दिस क्लास, एंड द नेक्स्ट क्लास विल बी लर्निंग अबाउट द रॉयल सेंटर ऑफ विजयनगर। सो थैंक यू।